السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 3، آیت نمبر 3۔ الزانی لا ينكح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الزانی الزانی لا ينكح لا ينكح الا زانیۃ الا زانیة او مشرکۃ او مشرکة والزانیۃ والزانية لا ينكحها لا ينكحها الا زان او مشرک إلا زان أو مشرك وحرم وحرم ذلك على المؤمنين ذلك على المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ الزانی بدکار اللہ اکبر۔ الزانی زا کا مخرج اور اس کے آگے الف ہے، ایک سیکنڈ کی مد کر کے، نی حروف مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، یہ حروف مدہ بنتا ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ لا ينكح، ین نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے، یہاں اخفا کریں گے اور آگے ہا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ينكح شاباش۔ الا زانیتن، الا مضبوطی کے ساتھ، آگے الف ہے، ایک سیکنڈ کی مد، زانیتن زا کے آگے پھر الف ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر مد کرنی ہے۔ زانیتن یہاں اظہار ہوگا نون تنوین کے بعد، نون تنوین تو آ گیا مگر ما بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ حروف ہلکی میں سے، تو یہاں اس کا اظہار کریں گے۔ آؤ، یہ حروف کیا بنتا ہے؟ لین، آؤ، ٹھیک ہے جی، یہ نرمی کے ساتھ ایک الف کے برابر مد کر کے، مشرکتاں، را کو ذرا خصوصی طور پر باریک کرنا ہے، خصوصی طور پر باریک کر کے، تاؤں کر کے، ٹھیک ہے جی، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ والزانیۃ، زا کے آگے الف ہے، پھر آگے لا ینکحوہا، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا پھر آگے ہا اور ہا، ہا اس کا ذرا فرق ہو جائے جی، کیسے کریں گے ڈاکٹر صاحب فرق؟ لا ينكحوها عبداللہ تم یہاں سے پڑھو، او مشرک، ہاں ٹھیک ہے مشرک۔ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم نہیں ذلك اس سے پیچھے والا، او مشرکتاں والزانیۃ، اس کو أو مشركة۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك۔ شاباش، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو اس کا فرق کرنا ہے، الا زان یہاں بھی اظہار ہوگا، او مشرک، اگر اس کو ملا کے پڑھتے ہیں مثلا او مشرک کو، تو پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ او مشرکون، وہ یرملون کا قاعدہ لگائیں گے، کیونکہ پیچھے نون تنوین ہے نا اور آگے واو آ گیا، تو لہذا وہ قاعدہ لگ جائے گا۔ وحرم، را کو باریک، ہا، ذالک، ذال کا، علی المؤمنین، اس کو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے چونکہ حمزہ ساکن ہے۔ الزانی بدکار مرد، لا ینکحو نہیں نکاح کرتا، الا مگر
ज़ानियतन बदकार किससे, औरत से, आओ या मुशरिकतन मुशरिक औरत ही से, वज़ानियत और बदकार औरत, ला यनकिहुहा नहीं निकाह करता उससे, मगर इल्ला मगर ज़ानिन बदकार मर्द, आओ मुशरिक या मुशरिक मर्द ही, वह हुर्रिमा और हराम कर दिया गया है, ज़ालिका ये ज़िना और ज़िनाकारों से निकाह, अलल मुमिनीन मोमिनों पर। ये तर्जमा था। जो मुफस्सिर ने बात लिखी है वो तो इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। इससे पहले यहाँ एक नुक्ता है, अल्लाह फरमाते हैं कि ज़ानी मर्द जो है या तो ज़ानी औरत से निकाह करेगा या मुशरिक से, हालांकि मुशरिक के साथ ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह यूँ फरमाते हैं ज़ानी मर्द ज़ानी औरत से निकाह करे और ज़ानी और ज़ानी मर्द से निकाह करे, यहाँ मुशरिक का लफ्ज़ आ गया। एक बहुत बड़ा नुक्ता है, कोई ज़हन में आ रहा है? हाँ जी, गहरा ताल्लुक़ तो खैर चलो। बात असल में ये है, यहाँ अल्लाह ने ज़ानी के साथ मुशरिक का जो जिक्र फरमाया है वो क्यों फरमाया? जी, दोनों एक पे कनात नहीं करते। मुशरिक भी अल्लाह के अलावा इबादत समझता है किसी और की तरह, और जानी औरत या दूसरा मर्द चाहती है या दूसरे मर्द के साथ, दोनों का एक ही हाँ चल, कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। असल में ये है कि ज़ानिया जो औरत है उसने वो हक जो अपने खामन से लेना था, खामन से जो लेना था ना, वो किसी और से लिया और किसी और से लिया, ठीक है ना। तो मुशरिक औरत जो है, जो उसने अपने अल्लाह से मांगना या लेना था वो किसी और से मांगा, दोनों की सिफात एक। ठीक है, वो किसी और से मांगा, इसलिए अल्लाह पाक ने यहाँ वो जिक्र कर दिया। ये वो नुक्ता था जो मैं आपके सामने अर्ज कर दिया। अब आइए कि इसके मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो जो बीच में आपने हज़रत मरसद का ज़िक्र जो है वो नहीं सुना होगा, वो भाई ने बयान नहीं किया था, वो लंबा वाक़या है। तो बहरहाल मरसद सहाबी हैं, मुसलमान हो गए, बड़े ताकतवर थे। तो ये जब मदीना चले गए तो फिर इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जो हमारे कैदी वहाँ मक्के में लोगों ने बांध रखे हैं, मैं उन मुसलमानों को छुड़ा के ना उठा के लाया करूँगा। आपने फरमाया देख लो, नहीं मैं इंशाअल्लाह बेफिक्र हो जाओ। इजाज़त मिल गई तो ये आए मक्का में, तो वो ले जाते थे। तो एक दिन ऐसे कहते हैं कि मैं चांदी रात थी, वो एक हमारा बड़ा वज़नी साथी था, वो बांधा हुआ था, उसको लेने आया। तो मैं यूँ गलियों में चल रहा था, तो वो अनाक जो है ना, जिसके साथ मेरे ईमान लाने से पहले ताल्लुक़ थे, वो एक खूबसूरत औरत थी, मालदार भी थी, उसका नाम था अनाक। तो मेरा उसके साथ ताल्लुक़ था। तो जब मैं मुसलमान हो गया तो मैं पढ़ लिया कि अल्लाह ने ज़िना को हराम कर दिया, तो काफ़ी अर्सा मुलाकात ही ना हुई। तो मैं वहाँ गया, तो मैं जा रहा था, तो उसने मुझे देख लिया, देखा तो मेरे पास आ गई। मेरे पास आया, जब आई तो मुझे पहचान लिया, कहा कि मरसद। मैंने कहा मरसद हूँ। आपने कहा अहलन व सहलन मरहबा, कहाँ हो, किधर हो, कैसे हो, फिर आओ चलते हैं, आज रात मेरे साथ गुजरनी चाहिए। मैंने कहा ना अनाक, अब मैं नहीं आऊँगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने ज़िना को हराम कर दिया। मालूम होता है जो मोमिन है वो ज़िना नहीं करता। अल्लाह अकबर। इससे तो नहीं, उसने कहा क्यों, मैं ईमान वाला हो गया हूँ। तो उसने शोर बचा दिया कि लोगों तुम्हारे जो लोग उठाने वाला चोर है वो आ गया। तो वो कहते हैं वो लोग, लंबा वाक़या है, वो मेरे पीछे भागे और मैं भी जरा मुट्ठी बंद करके भागा और ऊपर चढ़ गया और फिर एक गार में चला गया। वो भी आगे, तो उन्होंने ऊपर खड़े होकर इधर उधर देखा, हत्ता कि उन्होंने ऊपर से पेशाब किया, वो पेशाब भी मुझ पर गिरा, लेकिन वो मुझे पकड़ ना सके। अल्लाह ने उनको रुसवा कर दिया, अल्लाह ने मुझे हिफाजत करी। तो मैं चला गया मदीना, जाके मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल ये मामला हो गया है जी, अपने साथी को लेके। तो मैंने इजाज़त मांगी कि मैं मरसद अपना अनाक से निकाह कर लूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ के सुनाई कि मरसद कि तुम कैसे निकाह करोगे, है जी, कि अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन, ठीक है नहीं। अच्छा, इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ज़ानिया औरत के मुतल्लिक वो कहते हैं कि बिल्कुल हराम है मोमिनों पर, ठीक है जी। और इसी तरह दूसरे बाकी आइम्मा भी, अहमद बिन हम्बल भी इस बात को जो है तरजीह देते हैं कि नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एक अलग अपनी जगह मसला है कि ज़ानी मर्द है या ज़ानी औरत मोमिन जो पाक दामन
खातून है या पाक दामन मर्द है उनका नहीं हो सकता। एक ये हो गया। और दूसरा यहाँ ये जो मसला है कि अगर किसी मर्द से ज़िना सरजद हो जाए फिर वो तौबा कर ले तो उसका निकाह पाक दामन औरत से जायज़ है तौबा के बाद। ये एक मसला। और अगली आयत के अंदर अल्लाह के फज़ल करम से ये बाकायदा इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका आ रहा है। तो फरमाया कि अगर किसी मर्द से ज़िना सरजद हो जाए फिर वो तौबा कर ले तो उसका निकाह पाक दामन औरत से जायज़ है। इसी तरह ज़ानी औरत तौबा कर ले तो उससे अफीफ़ा मोमिन का निकाह जायज़ है। जैसा कि कोई मुशरिक मर्द या औरत शिरक करता है फिर वो तौबा कर लेता है, मुसलमान हो जाए तो उनके साथ निकाह जायज़ है। सूरत फुरकान की आयत नंबर 70 को भी आप देख सकते हैं, उसमें ये सारे दलाइल मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। दूसरी बहुत सी आयात में ये मसला जो है वो मौजूद है। इब्न अबी हातिम अपनी सनद के साथ नकल किया है कि एक आदमी ने इब्न अब्बास से पूछा कि मैं एक औरत के पास जाता था, यानी ये मुसलमान सवाल कर रहा है किससे? सहाबी रसूल से, कि मैं क्या करता था, एक औरत के पास जाता और उसके साथ जो है वो काम करता था। हैं, समझ आ गई ना जी? हाँ, यानी उस काम का इर्तिकाब करता था जो अल्लाह ने मुझ पर हराम किया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे उससे तौबा की तौफीक अता फरमाई। अब मेरा इरादा है कि उससे निकाह करूं। तो कुछ लोगों ने कहा इन्नज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, ज़ानी नहीं निकाह करेगा मगर ज़ानिया औरत से या मुशरिक से। तो उन्होंने ये मुझे फतवा दिया। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया ये आयत उसके मुतल्लिक नहीं, तुम उससे निकाह कर लो, जो गुनाह होगा तो वो मुझ पर छोड़, तो मेरे ज़िम्मे रहने दो। यानी मालूम ये हुआ कि कोई गुनाह नहीं है, तुम उससे निकाह कर सकते हो। अगर वो तौबा कर लें तो तौबा के बाद निकाह हो सकता है। ठीक है जी, बस इसको यहाँ तक छोड़ते हैं, बाकी इंशाअल्लाह कल देखेंगे।